السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں انا یوسف اور میں ہوں ریحان طارق۔ سب سے پہلے سٹی ہیڈ لائنز۔ پنجاب یوتھ فیسٹیول کے تحت نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں پاکستانی جوانوں نے 11 ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیے۔ 1 منٹ میں پش اپس، اخروٹ توڑنا، سینڈوچ بنانے، وزن اٹھا کر پش اپس لگانے کی مختلف کیٹیگریز کے عالمی ریکارڈ پاکستان کے نام۔ محکمہ ایکسائز میں گریڈ ڈی گریڈ میرٹ پالیسی مذاق بن گئی۔ صوبے کے 11 ریجنز میں سے صرف ایک ریجن میں ڈائریکٹرز کی میرٹ پر تقرری، گریڈ 17 والے گریڈ 19 کی آسامی پر تعینات، جبکہ گریڈ 20 کے افسر کی گریڈ 19 میں تقرری کر دی گئی۔ پولیو مہم کے دوران بعض علاقوں میں ویکسین کی قلت، تیسرے روز کا ہدف حاصل نہ ہو سکا۔ ادھر بھارت جانے والوں کے لیے پولیو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لازمی قرار، ای ڈی آفس میں پولیو ویکسینیشن ڈیسک قائم کر دیا گیا۔ ڈائریکٹوریٹ آف انڈسٹریز میں 12 روز کا ولایت زدگی معمہ بن گئی۔ ایڈیشنل سیکرٹری نے 1 روز میں انکوائری مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ہائی کورٹ نے پولیس کو گیسٹ ہاؤسز اور کلبز پر چھاپے مارنے سے روک دیا۔ ایس پی سول لائنز کی چھاپے نہ مارنے کی یقین دہانی۔ پولیس لوگوں کی ذاتی زندگی میں خلل ڈالنے کی بجائے سرعام ہونے والے جرائم پر توجہ دے، عدالت عالیہ کے ریمارکس۔ اتحاد کالونی سب ڈویژن میں صارفین کو ہزاروں یونٹس کی اوور بلنگ کا سکینڈل سامنے آ گیا۔ دوہرا ریکارڈ مرتب ریڈنگ پر صرف میٹر انسپیکٹر کے دستخط، لیسکو سرویلنس اینڈ انویسٹیگیشن نے اوور بلنگ کیس کی انکوائری کا آغاز کر دیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر دالیں گھی اوپن مارکیٹ سے بھی مہنگا، یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے الٹی گنگا بہا دی۔ دالوں کی فراہمی کا ٹینڈر 2 نجی کمپنیوں کو دے دیا۔ دال مسور اوپن مارکیٹ میں 105، یوٹیلیٹی سٹورز پر 126 روپے فی کلو۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر پنجاب سے جرمنی کے سفیر ڈاکٹر سائرل جین نن کی ملاقاتیں، دونوں ممالک میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ادھر جرمن سفیر کی حضرت ماۃ لال حسین رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ جرمن سفیر ڈاکٹر سائرل جین نن کا اپٹما ہاؤس کا دورہ، چیئرمین اپٹما پنجاب SM تنویر سمیت دیگر رہنماؤں سے ملاقات۔ ٹیکسٹائل برآمدات $26 ملین تک پہنچانا ہدف ہے، GSP پلس سٹیٹس سے برآمدات بڑھیں گی۔ SM تنویر کی جرمن سفیر کو بریفنگ۔ گول گپے پیٹھی والے لڈو دستیاب، 15 لاکھ پاکستانیوں نے مانچسٹر کو لاہور بنا رکھا ہے۔ مانچسٹر کے لارڈ میئر نعیم الحسن کہتے ہیں برطانیہ میں میڈیکل اور IT کے شعبوں میں افرادی قوت درکار ہے۔ ادھر گورنر ہاؤس میں نعیم الحسن کے اعزاز میں ناشتہ، لارڈ میئر مانچسٹر کا سول سیکریٹریٹ کا بھی دورہ۔ وکلاء اور پولیس کا پھڈا، خاتون کو 3 روز تک حبس بیجا میں رکھنے پر SHO سمن آباد نشاد چیمہ، انچارج انویسٹیگیشن عمر رشید بٹ کے خلاف اپنے ہی تھانے میں مقدمہ درج۔ ادھر عدالت عالیہ نے وکلاء تشدد کیس میں پروسیکیوٹر جنرل اور DIG آپریشن سمیت دیگر فریقین کو طلب کر لیا۔ عدلیہ مخالف قوتیں وکلاء اور پولیس کو لڑوا کر مذموم مقاصد کی تکمیل چاہتی ہیں، منفی کوششیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہائی کورٹ بار کے صدر شفقت محمود چوہان کی پولیس اہلکاروں پر وکلاء تشدد کے حوالے سے پریس کانفرنس۔ پولیس اہلکاروں پر تشدد کے واقعے پر اعلیٰ افسران میں تشویش، وکلاء قیادت بھی معاملے کی سنگینی کا نوٹس لے، یہی صورتحال رہی تو اہلکار کیسز میں پیش ہونے سے انکار کر سکتے ہیں۔ PSP پنجاب چیپٹر کے آئندہ اجلاس میں معاملہ زیر بحث لانے کا فیصلہ۔ ڈائریکٹر FIA ڈاکٹر عثمان انور نے انسپیکٹر سمیت 17 اہلکاروں کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ حمیرہ کنول امیگریشن سرکل سے کارپوریٹ کرائم سرکل میں تبدیل، انسپیکٹر احمد نعیم سندھو کا AHTC تبادلہ کر دیا گیا، جبکہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر غیر ملکیوں کے لیے مخصوص کاؤنٹرز پر پاکستانی شہریوں کی امیگریشن سے روک دیا گیا۔ کرکٹر عمر اکمل نے ٹریفک وارڈن محمد ذیشان کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کر دی۔ سیشن عدالت نے SHO تھانہ گلبرگ سے 8 مارچ کو رپورٹ طلب کر لی۔
محکمہ ایکسائز نے پراپرٹی ٹیکس کی عدم ادائیگی پر PIA سوسائٹی ویلنجیا اور واپڈا ٹاؤن میں 67 املاک سربمہر کر دی، جبکہ 8 املاک کے مالکان نے 7 لاکھ روپے ٹیکس موقع پر ادا کر دیا۔ ادھر 2 کروڑ 30 لاکھ ٹیکس کی عدم ادائیگی پر FBR نے لکھو ڈھیر میں واقع صابری اسٹیل اینڈ ری رولنگ ملز کا بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیا۔ MPAs کا شہر میں مصروف دن، سیف الملوک ہوکر کی جوہر ٹاؤن میں کھلی کچہری، چودھری یاسین سہل کا والٹن روڈ کا دورہ، جبکہ رمضان صدیق بھٹی نے بوستان کالونی چونکی امرصدو میں سیوریج کے کام کا جائزہ لیا۔ شہزاد منشی کا کہنا ہے کہ 3 چرچز میں 1 کروڑ لاگت سے تزئین و آرائش کا کام مکمل کیا جائے گا۔ صدر پیپلز پارٹی لاہور سمینہ خالد گھرکی کے گھٹنے کا کامیاب آپریشن، گھرکی ہسپتال میں معروف آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر عامر عزیز نے آپریشن کیا۔ نون لیگی رہنما سہیل ضیاء بٹ سے سمن آباد کار ڈیلرز ایسوسی ایشن کی ملاقات، سہیل ضیاء بٹ کو ایسوسی ایشن کا سرپرست اعلیٰ مقرر کرنے کا اعلان۔ ادھر گلبرگ ماڈل ٹاؤن لنک روڈ کے تاجروں کی لاہور چیمبر کے صدر سے ملاقات، جبکہ منٹگمری اور پرانی انارکلی کے تاجروں کی مسلم لیگ نون ٹریڈرز ونگ کے نو منتخب صدر ناصر سعید سے ملاقات، مارکیٹوں میں درپیش مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا۔ سعودی وفد کی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر سے ملاقات، سعودی کلچر اتاشی ڈاکٹر حزا بن عبداللہ الغامدی کا تعلیمی امور میں تبادلے پر دلچسپی کا اظہار۔ چڑیا گھر میں جانوروں کی جانوں اور صحت کو محفوظ بنانے کے حوالے سے 3 روزہ آگاہی مہم نو ٹو شاپنگ بیگز کا آغاز، مہم میں مختلف اسکولوں کے طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ 1 سے 23 مارچ تک لاہور میں جشن بہارہ منانے کے لیے PHA کی تیاریاں شروع، 1 مارچ کو افتتاحی تقریب کے لیے ریس کورس جیلانی پارک میں پنجاب پویلین سجا دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ ڈگری اینڈ کامرس کالج میں سالانہ فن فیئر کا انعقاد، طالبات دن بھر اسٹال سے دہی بھلے، فروٹ چاٹ اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء سے لطف اندوز ہوتی رہیں۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں فائن آرٹس کے طلباء و طالبات کے تیار کردہ فن پاروں کی سالانہ نمائش، کوئن میری کالج کے طالبات کی پہلی پوزیشن۔ ادھر ایکسپو سینٹر میں 5 روزہ عالمی کتب میلہ، لاہور سمیت جرمنی، امریکہ، برطانیہ، بھارت کے نامور پبلشرز کی شرکت۔ بیگن ہاؤس اسکول سسٹم گروپس کا سالانہ سپورٹس ڈے، طلباء کا ایروبکس کا خوبصورت مظاہرہ، بیڈمنٹن، باسکٹ بال، ٹیبل ٹینس سمیت مختلف مقابلوں میں شاندار کھیل پیش کیا۔ بوریان پنجاب کا پولو ٹورنامنٹ میں کالونی شوگر نیو ایج نے 11 کور کو شکست دے دی۔ اور بادل پھر 2 روز شہر میں قیام کریں گے، محکمہ موسمیات آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران وقفے سے بارش کی پیشگوئی کر سکتا ہے۔ خبروں کی تفصیل۔ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے محمد شاہد نے 1 گھنٹے میں سب سے زیادہ پش اپس لگا کر بھارت کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ 11واں ریکارڈ ہے جو پاکستان نے حاصل کیا۔ اس بارے میں ہم مزید جانیں گے جاز وسیم باکری سے۔ جی جاز بتائیے گا۔ جی میں اس وقت پنجاب سپورٹس بورڈ کے جمنیزیم میں موجود ہوں۔ پنجاب یوتھ فیسٹیول کے تحت جو کہ عالمی ریکارڈ توڑنے کی اٹیمپٹس تھی وہ ابھی بھی جاری ہیں۔ 1 گھنٹے کے 2 ریکارڈ سے جو کہ پاکستانیوں نے توڑ دیے ہیں۔ بھارت کا 28 سالہ پرانا ریکارڈ جو کہ بجندر سنگھ نے بنایا تھا سیدھے ہاتھوں کے ساتھ 1 گھنٹے میں مسلسل 3877 پش اپس لگانے کا ریکارڈ تھا، وہ پاکستان کے محمد شاہد نے توڑ دیا ہے۔ شاہد نے 1 گھنٹے کے اندر 4248 پش اپس لگا کر یہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ میرے ساتھ شاہد موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ شاہد، آپ نے بھارت کے بجندر سنگھ کا ریکارڈ توڑ دیا ہے، کتنا خوشی ہو رہی ہے اس وقت، جذبات کیا ہے آپ کے؟ آج مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میں پہلی مرتبہ یہ ریکارڈ بریک کیا اور پہلی مرتبہ یہ میں ورلڈ کا کمپٹیشن میں حصہ لیا، تو مجھے آج بہت خوشی ہے کہ میں آج یہ ریکارڈ بریک کر چکا ہوں، جسے کسی نے بریک نہیں کیا تو آج میں نے انشاءاللہ وہ بریک کر چکا ہوں۔ شاید آپ کا محکمہ کون سا ہے اور کتنے عرصے سے آپ اس کی تیاری کر رہے تھے؟ میرا محکمہ 65 سال ہے اور میں 1 سال کے لیے یہ تیاری کر رہا تھا۔ تو یہ جو ریکارڈ ہے آپ نے بنایا، اب کیونکہ کیپٹن ارباب جو ہیں وہ 12 گھنٹے 24 گھنٹوں کے پش اپس لگا رہے ہیں، تو اب 1 گھنٹے سے آگے بھی بڑھیں گے، کیا پلاننگ ہے؟ وہ تو میں بڑھ سکتا تھا لیکن ریکارڈ میرے پاس 1 گھنٹے کا تھا، میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ میں نے بریک کرنا ہے۔
बहुत शुक्रिया शाहिद, आपने भारत का रिकॉर्ड पाकिस्तान के हिस्से में लिया है। ये शाहिद है जिन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। भारत का रिकॉर्ड था, शाहिद ने तोड़ दिया है। इसके अलावा एक और रिकॉर्ड जो था सजाद हुसैन ने, वो उल्टे हाथों के साथ पुशअप्स लगाने का था। 1940 का वो रिकॉर्ड था। सजाद हुसैन ने 2700 से ज्यादा पुशअप्स लगाकर वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। जो कि 24 घंटों के 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड थे, उनके अटेम्प्ट अभी भी जारी हैं और वो कल तक जारी रहेंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका। हम किसी से कम नहीं, पाकिस्तानी नौजवानों ने 1, 2 नहीं बल्कि बैक वक्त 9 आलमी रिकॉर्ड बनाकर तहलका मचा दिया। जी हाँ, पंजाब यूथ फेस्टिवल में खिलाड़ियों ने 1 मिनट में पुशअप्स, सर की टक्कर से अखरोट तोड़ना, कीलों पर सहारा लेकर इंसानी सैंडविच बनाना और भारी वजन उठाकर रिकॉर्ड पुशअप्स लगाकर सबको हैरान कर दिया। तफसीलात के लिए देखते हैं एजाज वसीम बाकरी की ये रिपोर्ट। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़ेर एहतमाम पीएसबी जिम्नेजियम में होने वाले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मुकाबलों के मेहमान खसूसी सूबाई वजीर खेल राना मशहूद अहमद खान और डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड उस्मान अनवर थे, जबकि इस मौके पर गिनीज की टीम भी मौजूद थी। पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन अरबाब ने 40 पाउंड वजन उठाकर एक हाथ पर 1 मिनट में 62 पुशअप्स लगाकर बरतानिया का 31 पुशअप्स लगाने का आलमी रिकॉर्ड तोड़ डाला। दूसरा रिकॉर्ड 7 पाकिस्तानी नौजवानों ने 46 सेकंड तक सैंडविच तर्ज के बने कीलों के बिस्तर पर लेटकर भारत के 5 अफराद का आलमी रिकॉर्ड तोड़कर कायम किया। इस अनोखे रिकॉर्ड में ताज मोहम्मद, मुश्तबा हसन, मेराज हुसैन, नोमान हसन, अरसलान और असमर ने हिस्सा लिया। तीसरे वर्ल्ड रिकॉर्ड में मोहम्मद राशिद ने अपने सर की टक्कर से 1 मिनट में 155 अखरोट तोड़कर अमेरिका का 44 अखरोट तोड़ने का आलमी रिकॉर्ड पाश कर दिया। जो रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया ये अशरीता फरमान का था, और अशरीता फरमान वो शख्स है जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड बनाए और इस वक्त भी उसके पास कम से कम 100 से ऊपर आलमी रिकॉर्ड मौजूद है। तो मुझे उस अमेरिकन ये रिकॉर्ड था, तो अमेरिकन रिकॉर्ड तोड़ने पर मुझे बेइंतहा खुशी है। और सबसे ज़्यादा इस बात पर खुशी है कि उसका प्रीवियस रिकॉर्ड 44 का था और मैंने 155 वॉलनट्स को जो है वो अपने हेड के साथ ब्रेक किया है। फरहान अयूब ने 1 मिनट में 38 कपअप्स लगाकर बरतानिया का 22 कपअप्स लगाने का रिकॉर्ड ब्रेक करके पाकिस्तान के नाम किया, जबकि कैप्टन अरबाब ने 1 मिनट में उल्टे हाथों पर 166 पुशअप्स लगाकर कतर के शहरी का 132 पुशअप्स लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। नदीम अब्बास ने 40 पाउंड वजन के साथ उल्टे हाथों पर 70 पुशअप्स लगाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। इससे कबल यह रिकॉर्ड 51 पुशअप्स के साथ अमेरिका के पास था। मुश्तबा हसन ने नन चक्कू की मदद से 1 मिनट में 107 अखरोट तोड़कर सबको विरता हैरत में डाल दिया। इससे कबल 49 अखरोट तोड़ने के साथ यह रिकॉर्ड चीन के पास था। मुझे मार्शल आर्ट्स करते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं और जो ननचक्स की ट्रेनिंग लेते हुए मुझे तकरीबन 9 साल हो चुके हैं, जो कि ननचक्स बेसिक वेपन है मार्शल आर्ट्स का। और ये जो रिकॉर्ड मैंने अटेम्प्ट किया है पाकिस्तान के नाम कर चुका हूँ। अली हैदर ने उल्टे हाथों पर 60 पाउंड वजन के साथ 52 पुशअप्स लगाकर 38 पुशअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ डाला। पहले दिन के आखिरी रिकॉर्ड में जफर इकबाल ने 1 मिनट में 40 पाउंड वजन के साथ 100 पुशअप्स लगाए और 73 पुशअप्स का लबनानी रिकॉर्ड तोड़ा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने तमाम मुकाबले मॉनिटर किए। यूथ फेस्टिवल के तहत रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने का सिलसिला 27 फरवरी तक जारी रहेगा। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ एजाज वसीम बाकरी, सिटी 42। लॉर्ड मेयर ऑफ मैनचेस्टर नईमुल हसन ने सिविल सेक्रेटेरिएट का दौरा किया और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुहेल आमिर मिर्जा से मुलाकात की। सिटी 42 से बातचीत करते हुए नईमुल हसन का कहना था कि लाहौर लाहौर है, मेयर बनकर मैनचेस्टर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना लाहौरियों के लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। मजीद जानने के लिए देखते हैं इमरान यूनुस की ये रिपोर्ट। लॉर्ड मेयर नईमुल हसन ने सेक्रेटेरिएट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुहेल आमिर मिर्जा से मुलाकात की। इस मौके पर सेक्रेटरी INC नदीम महबूब, एडिशनल सेक्रेटरी अहमद अजीज तारड़ भी मौजूद थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने लॉर्ड मेयर को हुकूमत पंजाब के मंसूबों, प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में ब्रीफिंग दी। मीटिंग के बाद सिटी 42 से बातचीत करते हुए लॉर्ड मेयर का कहना था कि लाहौर एक तारीखी शहर है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। खानों में कड़ी पकौड़ा, कबाब और चरगे का असल मजा सिर्फ लाहौर में ही है। जो लाहौर है ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। हिस्टोरिकल है, अगर आप माल रोड पर से चलते जाएंगे तो साइड पर आप देखेंगे एचिसन कॉलेज है, गवर्नर हाउस है, जिना गार्डन है, इस तरह की चीज़ें जौन सी हैं आप देखते जाएंगे लाहौर पर। कबाब वगैरह अपना जौन सा है, चरगे हैं यहाँ पर, हम जौन सा बड़े इंजॉय करते हैं उसको।
मानचेस्टर में एशिया के पहले साबिक मेयर अफजल खान का कहना था कि लाहौर ने तरक्याती कामों खसूसन सड़कों की बेहतरी में बहुत तरक्की की है, जिसे देखकर बहुत खुशी हुई। सबसे ज़्यादा चीज़ नज़र आ रही है, अभी तक ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाया, रोड कंडीशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है, एक्चुअली मूवमेंट हो रही है। यकीनन बड़ा शहर है, ट्रैफिक का इशू तो होता ही होगा, लेकिन जनरल कंडीशन जो है बेहतर है। लॉर्ड मेयर नईमुल हसन ने बताया कि समुंदर पार पाकिस्तानी सालाना 16 अरब डॉलर पाकिस्तान बेचते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी अपने मुल्क में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं और उनके दौरे का मकसद इस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाना है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42। और नाज़रीन, बुलेटिन में बात करते हैं जर्मनी के सफीर डॉक्टर साइरल जैन नन के अपटमा हाउस के दौरे और अपटमा ओहदेदारान से मुलाकात के हवाले से। जर्मनी के सफीर डॉक्टर साइरल जैन नन ने कहा है कि GSP+ की सूरत में पाकिस्तान के पास नादिर मौका है कि आलमी मयार को अपनाते हुए इससे फायदा उठाए। जर्मनी के सफीर डॉक्टर साइरल जैनन ने एप्टमा ऑफिस के दौरे के मौका पर एप्टमा पंजाब के चेयरमैन एहसन तनवीर, साबिक चेयरमैन शहजाद अली खान समेत दीगर मेंबरान से मुलाकात की। एहसन तनवीर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि एप्टमा मुल्क की सबसे प्रीमियर टेक्सटाइल एसोसिएशन है। उन्होंने कहा कि एप्टमा का हदफ आइंदा 5 सालों में मुल्क की बरामदात $26 बिलियन तक ले जाना है। उन्होंने कहा कि जर्मनी जदीद तकाज़ों के मुताबिक वर्किंग एनवायरनमेंट अपनाने में पाकिस्तान की मदद करेगा। जर्मन कंपनी है GIZ, जिसके साथ एप्टमा ने एक जॉइंट वेंचर किया हुआ है पिछले 1 साल से, और हम अपनी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी के अलावा के बगैर हमारी इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती। इसमें वाटर कंजर्वेशन है, इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन है और बहुत सारे इशूज़ हैं। जर्मनी के सफीर डॉक्टर साइरल जैनन ने कहा कि GSP+ की बदौलत ही बहुत सी कंपनियों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आमादगी जाहिर की है। तरबियत याफ्ता लेबर फोर्स तैयार करने और बेहतरीन वर्किंग एनवायरनमेंट में तावन करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमती सतह पर गैर मुल्की कंपनियों को बेहतर फिजा मुहैया करना होगी। Pakistan can fully profit of its size and also of the talents in the country by having more investors and by having more foreigners doing business with this country. एप्टमा रहनुमाओं ने जर्मन सफीर को बताया कि हुकूमत तेजी से एनर्जी मसाइल पर काबू पाने के लिए काम कर रही है, जिससे माशी अदाद-ओ-शुमार बेहतर होंगे। कैमरामैन हाफिज बाबर और ख्वाजा फ़हीम के हमरा शहजाद हसन अब्दाली, सिटी 42। सरकारी महकमों और इदारों के बाद घरेलू सारिफीन को भी ओवर बिलिंग करने का केस मंजर-ए-आम पर आ गया। इत्तेहाद कॉलोनी सब डिवीजन लेस्को में सारिफीन को 500 यूनिट्स के स्टॉक लगा दिए गए। SDO ने 2 रिकॉर्ड मुरतब करके दस्तखत खुद करने के बजाय मीटर इंस्पेक्टर से करवा दिए। सारिफीन ओवर बिलिंग की शिकायत लगाते रहे, इंक्वायरी अफसर तरदीद करता रहा। तफसीलात के लिए देखते हैं शाहिद सफरा की ये रिपोर्ट। इत्तेहाद कॉलोनी सब डिवीजन में हुकाम की मिली भगत से सार्फिन को हजारों यूनिट्स की ओवर बिलिंग करने का स्कैंडल सामने आया है। इत्तेहाद कॉलोनी सब डिवीजन में SDO शबीर अहमद खान और मीटर इंस्पेक्टर अशरफ भट्टी ने सार्फिन को ओवर बिलिंग करके रिकॉर्ड मुरतब करने की कोशिश की। सिटी 42 को मसूल होने वाली दस्तावेजात के मुताबिक सार्फिन को 500 यूनिट का स्टॉक लगाकर ओवर बिलिंग की गई, जिसकी वजह से उनके बिलों में इजाफा हो गया। दस्तावेजात के मुताबिक SDO शबीर अहमद खान ने 2 रिकॉर्ड मुरतब किए, तहम रेवेन्यू ऑफिसर को रीडिंग के भेजे जाने वाले रिकॉर्ड पर खुद दस्तखत करने की बजाय मीटर इंस्पेक्टर अशरफ भट्टी से करवा दिए। इत्तेहाद कॉलोनी सब डिवीजन में ओवर बिलिंग पर सार्फिन ववेला करते रहे। सर जी मेरी अपना मीटर दे अपना देखो ना रीडिंग ज्यादा पाती तो मैं मीटर चेक किया, इत्थे कापी भी चेक की ते कितना चाहिए 135 यूनिट है कल के मैं 64 मैं नहीं दे सकता, 135 भी नहीं दे सकता। मैं बेरोजगार बंदा, 6 बच्चों का बाप है, मेरी दुकान 2 दफा डिकेती हो चुकी है, मैं दुकान छड़ दी थी। नहीं जो मेरी मीटर है वो करो। सर मेरी गल सुनो, मैं इंस्पेक्टर साहब और साडी तुसी दियो यदि जमा करा के तो ठीक करता ना, बिल जमा करने की कॉपी हम भेजो ना, अच्छा तो खत्म होगी गल। सर ये बिल ज्यादा बनाया ना उन्होंने, 6000 रुपए ज्यादा बनाया ना। मैं थोड़ा ज्यादा है ये देखो ना, ये रीडिंग मेरी ना 19/2 थी, ये रीडिंग आ रही है 374। गया तो ना देखन और हां जी उन्होंने किसे नहीं देखा गया ये ऐसी करता पढ़ना तो ठीक करी जाते हो ठीक, अब दोनों बिल ना रीडिंग में चेक करवाओ इनका। दूसरी जानिब ये इंकशाफ भी हुआ कि रेवेन्यू ऑफिसर को भेजे जाने वाली कॉपी पर मीटर रीडर्स के जाली दस्तखत किए गए, तहम ऑफिस कॉपी SDO के पास मौजूद है। लेस्को सर्विलांस एंड इन्वेस्टिगेशन ने ओवर बिलिंग केस की इंक्वायरी का आगाज कर दिया है, तहम इंक्वायरी अफसर SDO को ओवर बिलिंग पर बचाने की कोशिश करता रहा। स्ट्रोक सानू जड़ा RO ऑफिस विच एडे स्ट्रोक नजर नहीं आए, कोई स्ट्रोक नहीं नजर आया, जिवें कट के नहीं एक स्ट्रोक लाया हुंदा, मिसाल के तौर पर रीडिंग नूं बहुत ज़्यादा वधा दिता जाए, वो नहीं सीगा। SNI हुकाम ने इब्तदाई तहकीकात में SDO के 2 रिकॉर्ड और मीटर इंस्पेक्टर के दस्तखत होने की तस्दीक की है, तहम मजीद हकाइक आइंदा 2 रोज में मजीद इंक्वायरी के बाद सामने आ जाएंगे।
वाज़ेह रहे कि कंपनी की जानिब से सार्फिन को ओवर बिलिंग, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस पूरा करने के लिए की जाती है। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ शाहिद सिपरा, सिटी 42। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन में मेरिट पॉलिसी मजाक बनकर रह गई। ग्रेड 17 के अफसरान की ग्रेड 19 में, जबकि ग्रेड 20 के अफसर की ग्रेड 19 में तकर्रुरी कर दी गई। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन में अफसरान की तकर्रुरी और तबादलों में मेरिट को नजरअंदाज किया जाने लगा। महकमे के 11 रीजन्स में होने वाली तकर्रुरियों में से सिर्फ एक लाहौर के रीजन बी में तकर्रुरी मेरिट पर की गई, जबकि 10 रीजन में तकर्रुरी के लिए उल्टी गंगा बहा दी गई। इन रीजन में ग्रेड 17 के अफसरान की ग्रेड 19 में तकर्रुरी की गई, जबकि लाहौर के रीजन ए में ग्रेड 20 के अफसर अकरम अशरफ गोंदल को सीनियरिटी के बावजूद ग्रेड 19 में तैनात कर दिया गया। ग्रेड 19 में चौधरी मसूदुल हक को करंट चार्ज पर रीजन बी लाहौर, ग्रेड 18 के इमरान असलम को डायरेक्टर रीजन सी लाहौर तैनात किया गया। पोलियो मुहिम के दौरान बाज़ इलाकों में वैक्सीन की किल्लत पैदा होने से तीसरे रोज का हदफ हासिल न हो सका। उधर भारत जाने वालों के लिए पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दिए जाने के बाद ईडी ऑफिस में पोलियो वैक्सीनेशन डेस्क कायम कर दिया गया। पोलियो के खिलाफ जारी 3 रोज़ा मुहिम के आखिरी रोज शहर के बाज़ इलाकों में पोलियो वैक्सीन की शॉर्टेज का सामना पड़ा। पोलियो वैक्सीन की किल्लत की वजह से शहर के 30% इलाकों में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ हासिल नहीं किया जा सका। इस सूरत हाल के बायस चौथे रोज जुमेरात को भी शहर में पोलियो के खिलाफ मुहिम जारी रखने का फैसला किया गया है। लाहौर के पहले मेयर ऑफ मैनचेस्टर नईमुल हसन के एजाज में गवर्नर पंजाब ने नाश्ता दिया, जबकि पाकिस्तान में जर्मन के सफीर साइरल नन ने भी गवर्नर से मुलाकात की। गवर्नर की दिन भर की सरगर्मियों के बारे में बता रहे हैं आमिर आरिफ रिपोर्ट में। गवर्नर हाउस में मेयर ऑफ मैनचेस्टर नईमुल हसन के एजाज में दिए जाने वाले नाश्ते में साबिक मेयर मैनचेस्टर अफजल खान और चौधरी सईद भी मौजूद थे। इस मौके पर गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ और वो मिलकर एक कमीशन बना रहे हैं। आज खासकर मेरा ख्याल है लाहौर के लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए कि ये लाहौर का सन ऑफ दी साइल है, वो वहाँ पर नाम उसने पैदा किया है और वहाँ पर लॉर्ड मेयर जो है बना है। लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर नईमुल हसन ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लाहौर उनका दिल है और उन्हें बहुत खुशी है कि वो पहले लाहौरिये हैं जिन्हें ये एजाज मिला। मेयर बनकर मैनचेस्टर में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना उनके और लाहौरियों के लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। मैं पहली मरतबा अभी लॉर्ड मेयर बनने के बाद यहाँ लाहौर में आया हूँ। मेरा साल यहाँ की मेरी पैदाइश है लाहौर की, और मुझे फ़ख्र है कि मैं अपना लॉर्ड मेयर बन के यहाँ पर आया हूँ। मैंने अपने लाहौर का नाम वहाँ जाकर रोशन किया है। पाकिस्तान में जर्मनी के सफीर डॉक्टर साइरल नून ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात की। जर्मन सफीर का कहना था कि GSP प्लस स्टेटस के मुस्बत असरात आना शुरू हो गए हैं और बहुत सी जर्मन कंपनियां पाकिस्तान का रुख कर रही हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि इस अहम फैसले से सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर ही नहीं बल्कि सैकड़ों दूसरे शोबों को भी वसअत देने में मदद मिलेगी। बाद में गवर्नर से जनरल एंड्रो पॉक्स की क़यादत में अमेरिकन साल्वेशन आर्मी के 6 रुकनी वफद ने मुलाकात की। मुलाकात में मुकामी साल्वेशन आर्मी के पादरी और डीन ऑफ लाहौर कैथीड्रल चर्च शाहिद मराज भी मौजूद थे। जनरल एंड्रो पॉक्स ने पाकिस्तानी हुकूमत की इकलीतों के लिए खिदमात को सराहा। सऊदी अरब के वफ़द ने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर से मुलाकात की। सऊदी कल्चर अताशी डॉक्टर हुस्ना बिन अब्दुल्ला अल गादमी ने UET के साथ असातिज़ा और तलबा तालिबात के वफूद के तबादलों की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वाइस चांसलर UET लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम खान ने वफ़द से बातचीत करते हुए एनर्जी के हवाले से जारी तहकीकी मनसूबाजात के साथ साथ मजमूई कारकर्दगी से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग दी। सऊदी कल्चरल अताशी डॉक्टर हुस्ना बिन अब्दुल्ला अल गमदी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब को इंजीनियरिंग के मैदान में एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए। UET और सऊदी जामियात में असातिज़ा तलबा की सतह पर वफूद का तबादला भी होना चाहिए। किताब के मुताले के शौकीन अफराद के लिए एक्सपो सेंटर में 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेला शुरू हो गया है। इस मौके पर 5 ममालिक के नामवर पब्लिशर्स ने अपनी किताबों के स्टॉल्स लगाए हैं। अकमल सोमरू की ये रिपोर्ट। एक्सपो सेंटर में मुनकिदा लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर का इफ्तिताह चेयरमैन PCB नजम सेठी ने किया। इस मौके पर डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर राना नसीम अख्तर, चेयरमैन पंजाब करिकुलम अथॉरिटी अख्तर कयानी, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर डिवीजन मंजूरुल हसन नियाजी ने शिरकत की। सदर उर्दू बाजार खालिद परवेज और लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर के सेक्रेटरी सलीम मलिक भी इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन PCB ने स्टॉल्स पर रखी किताबों का मुआयना भी किया। 28 साल से लाहौर बुक फेयर कर रहे हैं और कामयाबी से कामयाबी हो रही है, मगर किताबों की कीमतें बढ़ रही हैं और आवाम की जो जेब है वो छोटी होती जा रही है महंगाई की वजह से। हमारी यही हमेशा कोशिश रही है कि गवर्नमेंट किसी तरीके से किसी किस्म की मदद करे।
आलमी कुतुब मेले में जर्मनी, अमेरिका, बरतानिया और भारत के नामवर पब्लिशर्स और लाहौर समेत पाकिस्तान भर से पब्लिशिंग इदारे शिरकत कर रहे हैं। कुतुब मेले में लगाए गए 272 स्टॉल्स पर खरीदारों को 15 से 50% तक रियायत दी जा रही है। शहरियों ने सस्ती किताबों की फराहमी के लिए कुतुब मेले को खुश आइंद करार दिया है। एंटरटेनिंग भी है और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑल मस्ट शुड कम। जिनको शौक है वो टाइमली यहाँ पे आके अपनी पसंद की किताबें खरीद सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बुक फेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स को ज़रूर विजिट करना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट पे बुक अवेलेबल नहीं है, बहुत से सब्जेक्ट्स पे बुक्स अवेलेबल हैं। इंटरनेट और दीगर जदीद सहूलतों के इस दौर में कुतुब बीनी को फरोग देने के लिए एक्सपो सेंटर में शुरू होने वाला आलमी कुतुब मेला 5 रोज तक जारी रहेगा। शहरियों का किताब से रिश्ता मजबूत करने के लिए ये मेला इंतहाई कारगर है। जहाँ पर इस किताब मेले में सस्ती और मयारी किताबें फरोख्त की जा रही हैं, वहीं पर कुतुब बीनी के शौकीन अफराद के लिए इसमें बहुत कशिश भी है। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के हमरा अकमल सोमरो, सिटी 42। कम बिजली इस्तेमाल करने वाले लाहौरियों के लिए खुशखबरी। हुकूमत पंजाब 3 अरब रुपए की लागत से 2 लाख घरों को सोलर होम सोल्यूशंस पैनल फराहम करेगी। महकमा बल्दियात ने घरों का डेटा सूबाई हुकूमत को फराहम कर दिया है। तफसीलात के लिए देखते हैं इमरान यूनुस की ये रिपोर्ट। शहरियों को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए हुकूमत पंजाब सोलर एनर्जी के इस्तेमाल से एक नया प्रोजेक्ट मुतारफ कराने जा रही है। लाहौर शहर में कम बिजली इस्तेमाल करने वाले 2 लाख शहरियों को सस्ते सोलर होम सोल्यूशंस मुहैया किए जाएंगे। महकमा बल्दियात ने शहर भर में मौजूद घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली और यूनिट्स का डाटा इकट्ठा करके वज़ीर आला को पेश कर दिया है। सोलर होम सोल्यूशंस पैनल सिर्फ 500 वाट से 5 किलो वाट बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को मुहैया किए जाएंगे। ये एक विजन है गवर्नमेंट का और लीडरशिप का, जिला पंजाब का, एक आम घरों के अंदर जो है छोटी ज़रूरत से लेकर बड़ी ज़रूरत तक, ताकि उनको दिन के वक्त अगर जो लोड शेडिंग है, जो हमारा ग्रिड पे बोझ है वो कम और लोगों को सस्ती बिजली, उनके कॉस्ट भी कम आएगी। मंसूबे के तहत हुकूमत बगैर किसी एडवांस और सूद के शहरियों को 3 अरब रुपए के सोलर होम सोल्यूशंस फराहम करेगी। घरों में पैनल्स की मुफ्त तनसीब और उन्हें काबिल इस्तेमाल बनाना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। पैनल फॉल होने के बाद शहरी इनकी कीमत पंजाब बैंक के जरिए हुकूमत को अदा करेंगे। कोई सूद नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा और थ्रू बैंक ऑफ पंजाब इंशाल्लाह उनके साथ नेगोशिएशन फाइनलाइज हो जाएंगे। थ्रू बैंक ऑफ पंजाब लोगों को ये सोल्यूशन हम जो है वो देंगे। कोऑर्डिनेटर टू वज़ीर आला बराए तवानाई शाहिद रियाज गोंदल का कहना था कि सोलर होम सोल्यूशंस फराहम करने की एक बड़ी वजह आलमी मंडी में सोलर एनर्जी की गिरती हुई कीमत भी है। लाहौर में रोशनी और हरारत की सूरत हाल बहुत बेहतर होने के बायस शहरियों को सोलर एनर्जी बिला तातुल मुयस्सर हो सकेगी। कैमरामैन बिलाल जफर के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। लाहौर हाई कोर्ट ने वकला तशद्दुद केस में SHO समनाबाद के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब और DIG ऑपरेशन समेत दीगर फरीकैन को ज़ाती हैसियत में जवाब समेत तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने वकला पर तशद्दुद में मुलव्वस SHO समनाबाद के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत की। अदालत में दरख्वास्त गुजार बाबर वहीद, शराफत खान समेत दीगर वकला की जानिब से राय बशीर अहमद एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने अहाताए सेशन कोर्ट में पुलिस एहलकारों को किसी तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया। सदर हाई कोर्ट बार शफकत महमूद चौहान ने कहा है कि अदलिया मुखालिफ कुव्वतें वकला और पुलिस की लड़ाई करा के मकासद हासिल करना चाहती हैं, जिसे वो कामयाब नहीं होने देंगे। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर शफकत महमूद चौहान ने लाहौर बार के सदर इश्तियाक चौधरी और दीगर उहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पुलिस ने पंजाब बार काउंसिल के मेंबर बाबर वहीद के घर का तकद्दुस पायमाल किया और खवातीन से बदतमीजी की, जिसकी वजह से सेशन कोर्ट का वाक़या पेश आया। उन्होंने कहा कि SHO समनाबाद की सेशन कोर्ट में पेशी के मौका पर पुलिस के दीगर एहलकार भी मौजूद थे। लाहौर चिड़ियाघर में जानवरों की जिंदगी और सेहत को महफूज बनाने के लिए 3 रोज़ा आगाही मुहिम नो टू शॉपिंग बैग्स का आगाज हो गया। आगाही मुहिम में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। फिजा इमरान की यह रिपोर्ट। लाहौर चिड़ियाघर में शुरू होने वाली आगाही मुहिम के पहले रोज वॉक की गई, जिसमें चिड़ियाघर के डायरेक्टर मोहम्मद नईम भट्टी समेत मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा व तालिबात और असातिज़ा ने हिस्सा लिया। वॉक के शुरा ने आगाही बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर शॉपिंग बैग्स के इस्तेमाल से पैदा होने वाले मसाइल दर्ज थे। चिड़ियाघर के डायरेक्टर मोहम्मद नईम भट्टी का कहना था कि अक्सर औक़ात सियाहों की जानिब से जानवरों के पिंजरों में शॉपिंग बैग्स फेंक दिए जाते हैं, जिन्हें खाकर अभी तक कई जानवर हलाक हो चुके हैं। चिड़ियाघर में जो शायकीन आते हैं उनको एक आगाही दें कि प्लास्टिक बैग्स का जो इस्तेमाल है इसको कम से कम किया जाए, क्योंकि ये ना सिर्फ हमारे माहौल में ये आलूदगी पैदा करते हैं, बल्कि ये हमारे एनिमल्स के लिए या जू एक्सिबिट्स जो हैं उनके लिए बहुत ख़तरनाक है।
से नो टू शॉपिंग बैग मुहिम में हिस्सा लेने वाले तलबा व तालबात ने भी शॉपिंग बैग्स में दीगर कूड़ा कर कूड़ेदान में डालने के अज़्म का इजहार करते हुए जानवरों की हिफाजत करने का अहद किया। हम लोगों का एनिमल्स की सेहत का ख्याल रखना चाहिए और जो कचरा होता है हमें डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए। हमें उनके केजेस में शॉपिंग बैग्स नहीं फेंकने चाहिए क्योंकि अपने खाना ढूंढने के लिए वो अपने शॉपिंग बैग्स यूज करते हैं जो उनके लिए अच्छे नहीं हैं। हमें एनिमल्स का ख्याल रखना चाहिए और हमें उन्हें प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स उनके पास नहीं फेंकने चाहिए। इस मौके पर शॉपिंग बैग निगलने के बायस हलाक होने वाले जानवरों के स्टफ मॉडल्स भी नुमाइश के लिए रखे गए। चिड़ियाघर इंतजामिया की जानिब से तलबा व तालबात के मबैन जानवरों की तस्वीर में रंग भरने के मुकाबले का एहतमाम भी किया गया। कैमरामैन आतिफ यासीन के साथ फिजा इमरान, सिटी 42। हज़रत आयशा सदीका डिग्री एंड कॉमर्स कॉलेज में सालाना फन फेयर का इनेकाद किया गया। कॉलेज के तालिबात दिन भर स्टॉल से दही भल्ले, फ्रूट चाट और दीगर खाने पीने की अशिया की खरीदारी करती रही। जुनैद रियाज की ये रिपोर्ट। निकलसन रोड पर वाक़े हजरत आयशा सदीका कॉलेज में मुनक्कद होने वाले सालाना फन फेयर में कॉलेज की प्रिंसिपल बुशरा मुजाहिद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। फन फेयर में कॉलेज इंतजामिया की जानिब से तालबात के लिए दही भल्ले, फ्रूट चाट, गोलगप्पे, बिरयानी और दीगर खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स लगाए गए थे, जहां तालबात चटपटे खानों के साथ साथ घुड़सवारी और झूलों से भी लुत्फ अंदोज होती रहीं और इसी दौरान दो तालबात ऊंट से उतरते हुए फिसलकर गिर भी गईं। तालबात का कहना था कि सालाना फन फेयर के इनेकाद से उन्हें दोस्तों के साथ मिल बैठने का मौका मिला, जिससे वो बेहद खुश हैं। यहाँ पे दही भल्ले, फ्रूट चाट, गोलगप्पे, स्टॉल लगे हैं, झूले भी लगे। इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया है और ऐसी चीजें होनी चाहिए हम कॉलेज में स्टूडेंट की इंजॉयमेंट के लिए। बहुत से कलरफुल कपड़े सबने बहुत पहने हुए हैं, बहुत से खाने पीने की चीजें हैं और बहुत ज्यादा मजा करें। प्रिंसिपल बुशरा मुजाहिद का कहना था कि तालबात सारा साल पढ़ाई करके थक जाती हैं और फन फेयर जैसे इवेंट में शिरकत करके न सिर्फ उन्हें तफरीह मैसर आती है बल्कि जहन को तरोताज़ा करने का मौका भी मिलता है। झूले भी लगवाए, स्टॉल्स भी लगवाए, बच्चों के लिए ऊंट और घोड़े की सवारी भी रखी है। तो ये सारी एडवेंचर्स हैं बच्चों के लिए जो इनकी सेहत के लिए, जिस्मानी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। कॉलेज में होने वाले फन फेयर से न सिर्फ तालिबान ने खूब हल्ला गुल्ला किया बल्कि उन्हें भरपूर तफरीही सरगर्मियां भी मैसर आईं। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ जुनैद रियाज, सिटी 42। खेल के मैदान से कुछ खबरें शामिल की जाएंगी सिटी स्पोर्ट्स में। सिटी स्पोर्ट्स इज ब्रॉट टू यू बाय क्लेयर स्पॉटलाइट में भी नथिंग टू हाइड। अपने रुपए की कदर करो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। बीकन हाउस स्कूल सिस्टम के ज़रिए एहतमाम सालाना स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ब्रांचेस के तलबा ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं सादिया खान से। वापडा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मुनक्कद होने वाली तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव बीकन हाउस स्कूल सिस्टम कासिम कसूरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर नासिर कसूरी, इवेंट ऑर्गेनाइजर तहमीना नईम समेत शुरा की कसीर तादाद ने शिरकत की। तलबा ने एरोबिक्स का खूबसूरत मुजाहरा किया और बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, हाई जंप और मुख्तलिफ रेसेज में हिस्सा लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव कासिम कसूरी का कहना था कि तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स की सरगर्मियां तलबा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये है कि हमारी ये उम्मीद है कि बीकन हाउस के अंदर स्पोर्ट्स की जो अहमियत है वो थोड़ी सी बढ़े। पाकिस्तान के अंदर अक्सर प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी ज़्यादा जो फोकस है वो क्लासरूम की पढ़ाई के ऊपर किया जाता है और जो स्पोर्ट्स है उसको वो अहमियत नहीं दी जाती जो कि एक हर मुल्क के अंदर होनी चाहिए। तलबा ने स्पोर्ट्स की सरगर्मी में हिस्सा लेकर खूब एंजॉय किया। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए क्योंकि इससे हमें इस स्पोर्ट्स की बेहतरी का पता चलता है और हमें कितना अंदाजा हुआ और ये अच्छा है। पढ़ाई से हट के ये इवेंट्स होने चाहिए और ज़्यादा, और बाकी स्कूल में भी स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। खेल में नुमायां पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। खेल के मैदान में नौजवानों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि तालीमी अदारे भी स्पोर्ट्स को फरोग दें ताकि मुस्तकबिल के मेमार मुल्क और कौम का नाम रोशन करने में अपना किरदार अदा कर सकें। कैमरामैन अली शेख इमराज, सादिया खान, सिटी 42।
बोरियान पंजाब कप पोलो टूर्नामेंट में कॉलोनी शुगर न्यू एज ने 11 कोर को शिकस्त दे दी। लाहौर पोलो क्लब के ज़ेरे एहतमाम जिलानी पार्क पोलो ग्राउंड में खेले गए मैच में कॉलोनी शुगर न्यू एज ने 11 कोर को 5.5 के मुकाबले में 7 गोल स्कोर से शिकस्त दी। 4 चक्कर पर मुश्तमिल इस मैच में फातेह टीम की जानिब से गैर मुल्की खिलाड़ी वाइल पेरीज ने 4 गोल स्कोर करके अपनी टीम की फतह में अहम किरदार अदा किया, जबकि साकिब खाकवानी ने 2 और नवीद एम शेख ने 1 गोल स्कोर किया। 11 गोल की जानिब से शाह कुबलाई आलम 2, अहमद जुबैर और जेमी सी हार्डी 1-1 गोल करने में कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक फरुख शफी ने एजेंसी नेशनल टावर एजेटन रोड पर पार्क सिटी ट्रैवल का इफ्तिताह कर दिया। एजेटन रोड पर होने वाली पार्क सिटी ट्रैवल एजेंसी की इफ्तिताही तकरीब में शेख फरुख, सुहेल भट्ट, मलिक रिजवान, कैप्टन इटाज शुएब, खालिद अल्ताफ, उमर गुजर और सुहेल प्रिंस समेत दीगर ने शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव पार्क सिटी ट्रैवल एजेंसी तारिक हुसैन ने कहा कि पार्क सिटी ट्रैवल शहरियों को बेहतरीन सर्विसेज फराहम करेगी। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स के तलबा तालिबात के तैयार करदा फन पारों की सालाना नुमाइश शुरू हो गई। लाहौर डिवीजन के 6 कॉलेजेस के तलबा के फन पारों के मुकाबलों में क्वीन मैरी कॉलेज की तालिबात ने पहली और तीसरी पोजीशन हासिल की। तफसीलात जानते हैं अकमल सोमरो से। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में सालाना फाइन आर्ट्स नुमाइश और इंटर कॉलेजिएट मुसव्वरी के मुकाबले मुनक्किद किए गए। 100 से ज़ायद तलबा के फनपारों की नुमाइश में नामवर मुसव्विर सदाकत अली और शोबा फाइन आर्ट्स के सरबरा इरफानुल्लाह बाबर ने खसूसी शिरकत की। नुमाइश में कायदे आजम और अल्लामा इकबाल के पेंसिल से बने पोर्ट्रेट खसूसी तवज्जो का मरकज बने रहे। ये इंटर वाले स्टूडेंट ने बहुत अच्छी आर्ट का काम किया हुआ है और पेंटिंग्स और पूरा मटेरियल बहुत अच्छा यूज़ किया हुआ है, बहुत अच्छा अवेल किया हुआ है। ओवरऑल एग्जीबिशन इसीलिए कि ताकि लोगों को अवेयरनेस आए, यहाँ पे लोगों को पता चले कि यहाँ पे फाइन आर्ट्स भी पढ़ाई जा रही है। इंटर कॉलेजिएट मुसव्वरी के मुकाबलों में गवर्नमेंट फातिमा जिन्ना कॉलेज चूना मंडी, गवर्नमेंट अफवा कॉलेज फॉर वुमेन, क्वीन मैरी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मॉडल टाउन, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गुलबर्ग और हजरत आयशा सिद्दीका डिग्री कॉलेज के तलबा ने हिस्सा लिया। मेरा अपना काम है, मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है, लेकिन मुझे इस एग्जीबिशन से बहुत कुछ सीखने को मिला है। पॉइंटर से काम किया है और पेंसिल वर्क मैंने सारा किया, उसकी वजह से मेरी फर्स्ट पोजीशन मिली है। मुकाबलों में बेहतरीन फनपारे तैयार करने पर क्वीन मैरी कॉलेज की फरिया मुगल ने पहली पोजीशन, गवर्नमेंट फातिमा जिन्ना कॉलेज चूना मंडी की हफ्सा खान ने दूसरी, जबकि क्वीन मैरी कॉलेज की ही फातिमा अकरम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के हमरा अकमल सोमरो, सिटी 42। सितार मौसीकी के साजों में बहुत अहमियत रखता है, मगर सितार बनाने वाले मुश्किल से वक्त की गाड़ी को धक्का दे रहे हैं। लाहौर में सितार बनाने वाले एक शख्स के बारे में देखते हैं रजा खरल की रिपोर्ट। ज़ियाउद्दीन कमजोर सही मगर उसके नातवां कंधों पर मौसीकी के एक अहम साज सितार बनाने की जिम्मेदारी का बोझ पुश्त दर पुश्त चला आ रहा है। काम बढ़ई का मगर इसमें सुर डालकर राग और बंदिशें पैदा करके ज़ियाउद्दीन अपने आप को दूसरे कई कारीगरों से मुख्तलिफ बना लेते हैं। ये सबसे अहम आइटम है। बाकी साज जो है ना वो संगत के लिए, जब सरंगी है वो गाने वाले के साथ बजेगी, हारमोनियम है या डांस के साथ बजेगी। गजल हो या ख्याल गायकी या धुरपद हो या मौसीकी की कोई और सिनफ, ज़ियाउद्दीन के बने सितार अपना आप बताते हैं और फिर सितार नवाजी के जुगादरी भी अशाश कर उठते हैं। अपने मिजाज के हिसाब से हमारे हम जुआरी खिलवाते हैं, जैसे जुआरी कहते हैं, जैसे ये ब्रिज है जुआरी कहते हैं, है जी। तो ये हम जब ख़राब होता है, जिसमें आँस नहीं होती, एको नहीं होती, तो फिर हम इनसे कहते हैं जुआरी खोलनी है। तो ये काम बहुत मुश्किल है। ज़ियाउद्दीन के वालिद भी अपने वक्त के मायानाज सितार बनाने वाले थे। हुकूमत ने उन दोनों के फ़न का एतराफ़ भी किया, मगर इसके बावजूद इस ख़ानदान के पास ऐसा कुछ नहीं कि इनके बच्चे फ़ख्र से शोबे को अख्तियार कर सकें। अंदेशा है कि ये फ़न उनके साथ ही कम अज़ कम लाहौर से तो कूच कर जाएगा। तकरीबन 200 साल तक मौसीकी के साज बनाने वाले इस ख़ानदान ने एक तरह से मौसीकी की सरपरस्ती की है। अब इसे सरपरस्ती की ज़रूरत है। कैमरामैन रिजवान अली के साथ रजा खरल, सिटी 42। पाबंदी के बावजूद दरियाए रावी और नहर किनारे सदके के लिए जानवरों का रंग ज़दा फेफड़ा बेचने वालों के डेरे। इंतजामिया की चश्मपोशी ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया। दूसरी जानिब सिटी 42 को देखते ही चील गोश्त बेचने वालों ने दौड़ लगा दी। हसन तैमूर की ये रिपोर्ट।
लाहौर में दाखिल होते वक्त और नहर किनारे सफर के दौरान चील गोश्त बेचने वाले बाकसरत नजर आते हैं। आफात और बलाओं को टालने के नाम पर दिए जाने वाला सदका उल्टा शहरियों के लिए मुख्तलिफ मुसीबतों को दावत देने लगा। पाबंदी के बावजूद चील गोश्त की फरोख्त पर बेचने वालों का कहना था कि वो ये काम मजबूरन करते हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से उन्हें बिल्कुल नहीं रोका जाता। ये मजबूरी तौर बेचीदा है, बकर मंडी से ले आते हैं। पुलिस वाले रोजाना आके हमें तंग करते हैं, पकड़ के ले जाते हैं। गरीब आदमी यहाँ पे खड़े होते हैं, पैसे पर्चा करते हैं, 1500 200 लेके छोड़ देते हैं। इस हवाले से बात करते हुए शहरियों का कहना था कि सदका देने का ये तरीका दुरुस्त नहीं, इससे ताफुन और ट्रैफिक मसाइल के साथ साथ गोश्तखोर चील कौवे बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो काम है ये बिल्कुल गलत है। ये हुकूमत को चाहिए कि इस मसले को हल करें, क्योंकि ये आलूदगी और ये फिपरे बिल्कुल गलत होते हैं। चीले बच्चों पे भी हमला कर सकती हैं। जिंदगी में इंसान को इस तरह नहीं करना चाहिए। सारी दुनिया आगे बढ़ रही है तो हम पीछे के पीछे ही हैं। जामिया तालीमुल कुरान के मोहतमिम और जमाते अहले सुन्नत वाल जमात इस्लामपुरा के अमीर कारी ज़हूर अहमद चिश्ती का इस हवाले से कहना था कि सड़क किनारे सदका उतारा जाना दुरुस्त अमल नहीं, इसके लिए महफूज तर तरीका अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लाम में सबसे बेहतरीन सदका किसी भूखे को खाना खिलाना है। सबसे बेहतर सदका और खैरात तो ये है किसी गरीब की मदद की जाए। आपके मोहल्ले में कोई बेवा हो जिसका कोई आसरा नहीं, इसी तरह कोई माजूर है, यतीम है, उनका कमाने वाला कोई नहीं है, उनको सदका खैरात दिया जाए। सिटी 42 की टीम को देखते ही नहर किनारे चील गोश्त बेचने वाले अपना सामान छोड़कर ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग, जबकि जाबजा फैले गोश्त के टुकड़े गंदगी फैलाने का बाइस बन रहे हैं। चील गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी के बावजूद इसको रोकने वाले हाथ कहीं नजर नहीं आते। इस हवाले से जिला इंतजामिया की खामोशी भी मैनिखेज है। कैमरामैन बिलाल जफर के साथ हसन तैमूर, सिटी 42। खान ने योम पाकिस्तान के लिए मिली नगमा परचम ये हमारा की वीडियो रिकॉर्डिंग शूट कर ली। बादशाही मस्जिद और शायर मशरिक हजरत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर होने वाली वीडियो शूट का अहवाल जानते हैं ज़ैन मदनी हुसैनी से। गुलूकारा सोमिया खान ने योम पाकिस्तान की मुनासबत से नया मिली नगमा तैयार किया है, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बादशाही मस्जिद की सीढ़ियों और मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर की गई। शायकीन की कसीर तादाद भी सब्ज़ हिलाली परचम थामे शूटिंग में शरीक हुई। सोमिया खान का कहना है कि उनके मिली नगमे का मकसद पूरी कौम को एक लड़ी में परोना है। वीडियो 23 मार्च को योम पाकिस्तान के मौका पर रिलीज की जाएगी। हमारी ये एक छोटी सी काविश है कि हम वो सब कुछ करें जो सबको मिलके करना चाहिए, और पाकिस्तान जो है उस वक्त उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग एक होके कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करते रहें। वीडियो के डायरेक्टर कबीर शाह काज़मी और डीओपी काशिफ रिजवी का कहना है कि वो मिली नगमे को पाक अफवाज के नाम करते हैं और कोशिश करेंगे कि इसे बिल्कुल मुनफरिद अंदाज में पेश किया जाए। मिली नगमा पाकिस्तान के लिए पाक फौज को एक अकीदत, एक नजराना पेश कर रहे हैं हम 23 मार्च के लिए। ये तराना है हुब्बुल वतनी पैट्रियोटिज्म 23 मार्च में इंशाल्लाह रिलीज होगा। वीडियो शूटिंग के लिए जदीद कैमरे रेड का इस्तेमाल किया गया है। सोमिया खान का कहना है कि वो मिली नगमे में जहां पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश करेंगी, वहीं नौजवान नस्ल के लिए एक पैगाम भी देंगी। कैमरामैन कामरान खान के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। इस देश के जवानों परचम को यूं ही थामो, लहरा के है बताता ये सबसे चांद तारा। न्यूज़ स्टूडियो